Hare Krishna, I am Bhaktin Surabhi. Welcome to Bhagavad Gita as it is Facebook page. So today we will read Bhagavad Gita as it is, chapter number 2, श्लोक नंबर 16. हरे कृष्णा, मैं भक्तिन सुरभि भागवत गीता एज इट इज के फेसबुक पेज पे आप सबका स्वागत है. तो आज हम लोग भागवत गीता एज इट इज से चैप्टर नंबर 2 से श्लोक नंबर 16 का पाठ करेंगे. फर्स्टली आई विल स्पीक इन इंग्लिश, देन आई विल ट्रांसलेट द सेम इन हिंदी सो दैट द पीपल और द डिवोटीज हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश कैन हियर द सेम इन हिंदी. तो पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगी, उसके बाद मैं सेम चीज़ को हिंदी में रिपीट करूँगी. जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है वो हिंदी वाला पार्ट सुन सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. हरे कृष्णा, भागवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 16. नाशतो विद्यते भाव नावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वयनोस्तत्वदर्शिभिः. So here in this sloka it is said that the difference between the body and soul is that the body is changing continuously every moment and thus growth and old age is taking place. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite of all changes taking in the body. So one can understand the nature of the Supreme by understanding who am I, where have I come from, and what is our relationship with the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. And in this way we will be able to understand the true or the real nature of the Supreme Personality of Godhead or the Supreme Soul. And we have to understand that we all are parts and parcel of the Supreme Personality of Godhead or Paramatma. In the Vedanta Sutras as well as in Srimad Bhagavatam, the Supreme is accepted as the origin of all emanation. In Srimad Bhagavatam it is said Janmadi Asya Atha. It means the Supreme is the origin of all emanations. So we have to understand this, that the human mind is inquisitive. We have got intelligence. We can inquire about something. Like a child, an intelligent child, when he sees something, when some object creates doubt in his mind, he asks his father, what is this, father? What is this for? And in the same way, we have to create doubt in our mind. Who am I? We have to ask our original father, the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. And we have to find out the answers of these questions. We have to know what is self-realization. What is our relationship with our father, our original father, Lord Shri Krishna? We have to find out the answers of these questions. We have to find the solutions of these problems. Who am I? Where have I come from? What is our relationship with Krishna? What am I doing here in this material world? And where we will go after our death? And we have to understand these problems, and we also have to find out the solutions to these problems. So we have to understand there is no difference between energetic and energy. The energetic is considered as the supreme and the energy is considered as a subordinate. That's why to drive the ignorance of the Lord and to find out the solutions to these problems for enlightenment of this material world, for enlightenment of all living beings, we have to read Bhagavad Gita. That is what is said in Bhagavad Gita as it is, chapter number 2, श्लोक number 16. Now we will proceed on to Hindi. चलिए अब हिंदी में शुरू करते हैं. तो इस श्लोक में चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 16 में यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जैसे बॉडी का चेंज होता है, यही डिफरेंस है यहाँ पे बॉडी और आत्मा के बीच में. यही डिफरेंस है शरीर और आत्मा के बीच में कि शरीर का चेंज होता है. शरीर का चेंज हर क्षण हर पल होता है, जैसे हम सबको पता है. इसलिए शरीर का ग्रोथ होता है, चाइल्ड, यूथ, बुढ़ापा भी आता है और चेंज होता है. इसलिए ग्रोथ होता है, इसलिए ही बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज आता है. पर जो बॉडी का चेंज होता है, माइंड का, मन का चेंज होता है, शरीर का चेंज होता है, उसका कोई इफेक्ट आत्मा पे नहीं पड़ता है. आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है. बॉडी का और माइंड के चेंज के साथ आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है. सिर्फ चेंज बॉडी का ही होता है. आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, हम इस संसार में किस कार्य के लिए आए हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ पे जाएंगे. इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें ढूंढना होगा. यही है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना. भगवान कौन है ये हमें जानना होगा, बट सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप खुद कौन हो. आप इस संसार में किस लिए आए हो, क्या कार्य है हमारा. सभी लोग इस संसार में कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए आए हैं. बट हम किस लिए आए हैं हमें खुद जानना होगा. हमारा भगवान के साथ खोया हुआ रिश्ता हमें फिर से एस्टेब्लिश करना होगा. भगवान के साथ क्या रिश्ता है वो पहले जानना होगा, फिर वो खोया हुआ रिश्ता हमें एस्टेब्लिश करना होगा. और सारे जो क्वेश्चंस मैंने बोला, हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, इस शरीर का क्या होगा, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें ढूंढना होगा. वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवतम में बोला गया है जन्मादि अस्य यथा.
मतलब इसका मतलब है कि कोई भी चीज इस संसार में जो कुछ भी है सबका उत्पत्ति भगवान से होता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में बोला गया कि संसार में कुछ भी हो उसका ओरिजिन भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसे कि मनुष्य शरीर हमें किस लिए मिला है? इंक्वायरी करने के लिए। सपोज कि आप किसी चीज़ को आपने देखा, किसी छोटे से बच्चे ने, बुद्धिमान बच्चे ने एक चीज़ को देखा, तो वो क्या करता है? अगर वो बुद्धिमान है वो पूछता है अपने पापा से, अगर उसको उसके बारे में नहीं पता, पापा ये क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये किस लिए है, ये किस काम में आएगा। ठीक उसी तरह हमारा जो परम पिता है भगवान श्री कृष्ण, उनके साथ हमारा जो खोया हुआ रिश्ता है वो हमें फिर से इस्टेब्लिश करना होगा। और ये जो सारे क्वेश्चंस है, ये जो सारे इंक्वायरीज है, डाउट्स है हमारे मन में, मैं कौन हूँ, भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हमारे पास इतने सारे शास्त्र है, भागवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इन सारे शास्त्रों में हमें इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। और सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको वहाँ से मिलेगा। एक सदगुरु के माध्यम से, अच्छे भक्तों के माध्यम से आप इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ पाओगे। तो हम अपना जो दिशा है, परम लक्ष्य है, उससे हम भटकते जा रहे हैं, ताकि हम उससे ना भटके और हमारा जो परम लक्ष्य है भगवान के पास लौट के जाना, उस लक्ष्य में, उस प्रॉपर डायरेक्शन में हम जा सके। इसलिए भागवत गीता पाठ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हरे कृष्णा भागवत गीता एज इट इज चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 16 में यही बोला गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।